Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 7 of the course Data Structures. My name is Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that the topics that I have been covering in the last few lectures and they are well clear to you. And I hope that you are finding no problem in understanding the concepts that I am trying to impart to you. As usual, we will start our today's lecture with the summary of the previous lecture. In the previous lecture, we started with the dynamic memory management with the pointers. We discussed that there are three types of memory. One is called the static memory, the other one is the heap memory, and the third one is the stack memory. The static memory is that part of the memory where the global and static variables they live, and the size of these variables are known at the compile time, and the lifetime of these variables are throughout the execution of the program, and they reside along with the program segment where the instructions for the program are stored. The other is the heap memory. The heap memory, we also sometimes call it free store. Basically, it is used for dynamically allocation at the execution time. From this heap, we allocated the unnamed variables, and which are managed memory accessed using the pointers. And they are explicitly allocated or deallocated during the program execution by C++ instructions written by programmer. You can use the new operator, delete operator, malloc, calloc. We also talked, the third one is the stack memory, which are used by the automatic variables and function parameters. The return type, the function local variables, the function formal parameters, they are automatically created at the function entry. They reside in the activation frame of the function, and they are destroyed when the function is returned and the control is transferred back to the calling program. We also discussed the four functions defined by the C language for allocating the dynamic memory. One is the malloc. Malloc basically allocates a size, a block of size bytes. It basically it returns, it allocates the memory from the heap, and it returns the address, starting address of that block to the calling program. And if it is unable to allocate space, or if the desired space is not available, then it will return the null pointer. The calloc, basically it also allocates a block with the number of bytes and the number of elements. It initializes every byte to 0, and it returns the pointer to the blocks. And if it cannot allocate the block from the heap, then the null pointer or the null value is returned. The third one is the realloc, which basically given previously allocated block starting at some PTR, it basically changes the block size to the new size and returns pointer to the resized block. If the block size is increased, the contents of the old block may be copied to a completely different region, and in this case the pointer return will be different from the existing PTR argument, pointer argument, and PTR will no longer point to a valid memory location. And if the pointer is null, it means that it cannot allocate. The realloc is identical to malloc. The fourth one is the free, which is given a pointer to the previously allocated memory. It puts the allocated region back to the heap for further use. And basically you have to easy to forget free the memory when no longer needed, especially if you are used to a language such as Java, which have the automatic garbage collection. But this is the source of notorious problem, memory leak. So, and which is difficult to trace. The program will run fine for some time until suddenly there is no more memory. So for using C and C++, you must have to deallocate the dynamic memory allocated previously. In the C++, they have added the two new operators. One is the new and the delete. The new operator also allocates the block from the heap, and delete basically return it back to the heap. We have to take care of the memory leaks problem.
it is difficult to trace, and the program will run fine for some time, otherwise it gets a problem. So there are two types of memory leaks we have to understand. So when there is memory errors, you can get the memory errors when you are using the memory that have not been initialized. You can get memory errors when you are using memory that you do not own. It means a segmentation error. And using more memory than you have allocated, and you can have the faulty heap management errors. In C++, you can allocate the memory using the new operator, and you have to delete it with the delete operator. And we talk about that for especially for deleting the arrays. The special syntax of delete is with the square bracket. We also discussed the two special cases of the memory leaks. One is the inaccessible object. Basically, it is an unnamed object that was created by operator new, and which a programmer had left without a pointer to it. Means you lost the address. The memory is still allocated, but you lost the address, so it is a logical error and it caused the memory leaks. The other problem is the dangling pointer. It is a pointer that points to dynamic memory that have been already deallocated by another pointer. The result of dereferencing of a dangling pointer is unpredictable. Then we also talk about the dynamic arrays. When we discuss when and how to declare in C and C++ with the new operator. And the size of the dynamic arrays, they remain fixed. They are allocated from the heap, and they must be freed using the delete with square brackets command. The valid operations for the dynamic arrays is the same as for the static arrays. Then we talk about the structures, which is a collection of related variables or aggregates under one name, and the element of these structures, they are called fields. The fields have to be related. It can contain variables of different data types, so we say that the structures, they are the heterogeneous data structure. They are commonly used to define records to be stored in the files, and when we combine them with pointers, we can create the linked list, stacks, queues, and the trees. We discuss about how to declare the structures and how we can access the fields, and we also discuss about the valid operations. The valid operations for structures, they are defined as you can assign a structure to a structure of the same type, means the assignment. You can take the address of a structure, which gives the starting address of the structure in the memory. The accessing the members of a structure using the size of operator to determine the size of the structure allocated in the memory. We also talk about the accessing structure members. So dot operator is used with the structure variables or the fields, and you can also use the pointer hyphen and the angular bracket with the pointers to structure variables. We also talk about the recursively defined structure. Obviously, you can't have a structure that contains an instance of itself as a member, but such a data item would be infinitely large. But within a structure, you can always refer to a structure of the same type via pointer, and we discuss different situations and how to declare them and how to access them. Then we also talk about the third type, that is the union. Basically, it is a memory that contains a variety of objects over time, the same memory location, but at different point of time, it can contain different values of different types. But only it contains only one data member at a time, and basically we can say that the members of a union, they share the space in the memory. It is used to conserve storage in the memory. The size of the union is basically the size of the largest member. And the link structures, like structures, they have every member occupies the same region of memory. We can say that in the structures, the member are basically name and species and their owner, but in the unions they are XORed together, means they are exclusive with each other, exclusive, or one cannot reside with the other at the same time. The valid operations for the unions include assignment to the union of the same type. You can take the address of the union. You can access the union member using the dot and the
pointer operations, you can access the members using pointer with the same way you access the fields of the records. Then we also talk about the strings. Basically, in C language, a string is a character array ending with the /0 or the null character. Most string manipulation is done through functions. In the C language and C++, they provide a built-in library in the string.h header file. Lot of functions are available with which you can easily manipulate and access the string in the C language. And we also saw some string functions which are defined in the stdlib.h, which means a to f, a to I, a to l, how you can convert from a string to a float and float to a string. And in the end, we discussed about the multi-dimensional arrays. Basically, we discussed about the two-dimensional arrays, which are useful when data has to be arranged in the tabular form. Higher dimensional arrays are appropriate when several characteristics are associated with data. Most languages, they provide support up to 7 or 8 dimensions of the data. For the 2D, means the two-dimensional arrays, we require 2 subscripts to access the array elements. One is the row and the column. And there are 2 ways. We have seen the 2 ways to store the multi-dimensional arrays, row-wise and column-wise. So up till the previous lecture, mostly what I have been doing that मैं आपका जो है वो जो C लैंग्वेज के जो आप ऑलरेडी इससे पहले कोर्स में पढ़ी होगी उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवा रहा था और उसको उस एंगल से मैं ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा था ताकि हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं तो आपको वो कॉन्सेप्ट खास से क्लियर हों और अब हम जब डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम इसको एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आई हो तो उसमें मैंने काफ़ी उस एस्पेक्ट्स को कवर किया है जिनको हमने डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कवर कर रहा है। तो आज के लेक्चर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स हम ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेज लेक्चर। हम आज सबसे पहले बात करेंगे नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, सेलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर की फ़िलासफ़ी क्या है, हम आज एरेज एंड लिस्ट के हवाले से बात करेंगे एंड वी विल सी सम ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द लिस्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई डेटा स्ट्रक्चर्स आर नीडेड। ये हमारी डिस्कशन पहले लेक्चर से चल रही है, आप उसको हम तरह से देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली दे आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा। तो जितना आपका डेटा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होगा उतने ही एफिशिएंट प्रोग्राम लिखे जाएंगे। अब एफिशिएंट प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझना। एफिशिएंट प्रोग्राम से मुराद ये है कि टाइम फैक्टर के हवाले से भी और मेमोरी स्पेस की यूटिलाइजेशन के हवाले से भी, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे जो जितने भी आप मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर वेयर the main concept is of the stored program, means कि आपका प्रोग्राम अब स्टोर होता है in the memory and the processor always fetches from the memory instruction and both the data। अब आपने डेटा को अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना किया तो वो उसकी फेचिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रोसेसिंग। और जो आपके सेकंड जो हमने देखा कि जितने आपके पावरफुल कंप्यूटर्स आते जा रहे हैं उसकी वजह से यू आर हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। पहले जब शुरू में कंप्यूटर्स थे तो जिन्होंने यूज़ करना होता था उनके लिए एप्लीकेशन सिंपल थी, मगर आजकल जो है एप्लीकेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं क्योंकि आपके पास हार्डवेयर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अब आप देखेंगे अब आप जो है वो मिसाइल्स को यू कैन कंट्रोल, आपके पूरे जो एयरलाइन सिस्टम है, रेलवे का सिस्टम है, वो पूरा रिजर्वेशन सिस्टम ऑटोमेट हुआ है, उनकी जो फ्लाइंग है और उनके जो रूट्स हैं वो डिटरमिन हुए हैं। बिज़नेस की तरफ जाएं, जैसे आपके अक्सर जिक्र करता हूं कि मोबाइल ऑपरेटर्स आप जो मोबाइल की कॉल्स करते हैं उसका सारा डेटा है। तो उसके अलावा PTCL का है, अगर आप ये देखें हमारा FBR हमारे जो इनकम टैक्स है उनको वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन। उसके अलावा हमारी जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, मेडिकल में अब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल कंप्यूटर्स योर एप्लीकेशंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। व्हेन
मोर जितनी आपकी कंपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, दे डिमांड मोर कैलकुलेशंस। उनको एफिशिएंट भी चाहिए, फिर आपका डाटा फिर आपको ऑर्गेनाइज इस तरह करना है कि वो क्विकली उनको मिल जाए और उनकी प्रोसेसिंग जो है वो स्लो ना हो, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है इट कैन प्रोसेस डाटा एट एन एक्सट्रीमली हाई स्पीड, जबकि मेमोरी से जो बसेस के ज़रिए जब आप डाटा भेजते हैं प्रोसेसर को तो वो स्लो है। दैट इज़ द बॉटलनेक। द मेमोरी एंड द प्रोसेसर, द डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर इज़ द बॉटलनेक। उस बॉटलनेक को हमें दूर करना। तो इस कोर्स में हम ज़्यादा फोकस जो है वो डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि किस किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं और हम इनको कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली डेटा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू मेक द डेटा रिसोर्स रेजिलिएंट, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली आपको डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैनेज करना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो तो फ्लेक्सिबल हो, जब ज़रूरत पड़े फ़ौरन मिल जाए, और उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से वो अडेप्टेबल हो। तो जो बेसिकली 4 गाइडलाइंस इस हवाले से दी जाती हैं हम उनको पहले देख लेते हैं। डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड लेटर। हमने डेटा को इस तरह रिप्रेजेंट करना, स्टोर करना कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े लेटर और एक्सेस करने के लिए तो वो हमें रेडिली अवेलेबल हो। डेटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड सो दैट दे कैन बी सिलेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सेस्ड, कि जब हमें डेटा को इस तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन करनी है कि जब भी हमें उसकी सिलेक्शन, पूरा डाटा नहीं चाहिए, उसमें से पोर्शन ऑफ अ डाटा चाहिए, सिलेक्टिव डाटा चाहिए, तो वो हमें एफिशिएंटली मिल जाए। मीन्स के कम टाइम में हमें अवेलेबल हो जाए। मीन्स हमें से मुराद प्रोसेसर को अवेलेबल हो जाए, ताकि वो प्रोसेसिंग जो है वो हाई स्पीड पर कर सके, और जितनी वो हाई स्पीड पर प्रोसेसिंग करेगा उतनी ही वो तेज़ी से यूज़र को रिस्पॉन्स भी दे पाएगा। द थर्ड गाइडलाइन ये है कि डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड सो दैट दे सपोर्ट द यूज़र एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, और उसको प्रेजेंट भी इस तरह करना है कि वो यूज़र एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करे और उसको हेल्प करे। And finally, data must be protected and managed so that they retain their value. उसके में प्रोटेक्शन भी करनी है कि वो ख़राब ना हो, उसकी अनऑथोराइज एक्सेस भी नहीं देनी, और वो इजीली मैनेज हो, और उसमें जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, उसको जो उसमें जो डेटा पड़ा है दैट मस्ट हैव अ वैल्यू व्हेन यू नीड इट। ये ना हो कि वो गड़बड़ हो जाए, आप लॉस कर बैठे, तो जब आपको ज़रूरत हो तो वो प्रॉपर डेटा ना आपको मिले। तो इन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए वी हैव टू मैनेज द डेटा ऑब्जेक्टिवली। अब हम बात करते हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज ऑफ द डेटा। एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन बी सर्च्ड, प्रोसेस्ड इन एनी ऑर्डर और मॉडिफाइड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब जो डेटा होता है वो फाइल्स की सूरत में या किसी और सूरत में होता है, और बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड मीन्स रिलेटेड रिकॉर्ड, उनका एक से ज़्यादा होते हैं और वो मिलते जुलते होते हैं, और उन्होंने उसको वक्तन फ़वक्तन सर्च भी करना होता है, प्रोसेस भी करना होता है, और उसको ज़रूरत पड़ने पर मॉडिफाई भी करना होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो जो आपका जो एम्प्लॉयज़ का जो डेटाबेस है उसमें उनकी प्रमोशंस होती हैं, तो आपने उसको एक्सेस करना है। मंथली बेसिस पर जो आपकी सैलरीज जा रही हैं उसमें अगर उनको कोई बोनस मिलता है या कोई इंक्रीमेंट होता है तो वो चीज़ें भी तो रिफ्लेक्ट करनी है। प्लस अगर उन्होंने कोई आप एडवांस लिया है या कोई ऐसी चीज़ ली है तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब सैलरी प्रोसेस होनी है तो वो तमाम डिडक्शंस और इंक्रीमेंट्स उसमें शामिल करनी है। तो रिमेंबर आपको मैंने शुरू में बताया था कि निकलस वर्थ हु इज़ दी बेसिकली फाउंडर ऑफ द पास्कल लैंग्वेज, उसने डिफाइन किया था कि प्रोग्राम, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज़ एल्गोरिदम्स प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिदम्स क्या है कि वो हमने कहा था इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्पेशली गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और उसके साथ आपको क्या चाहिए? डेटा स्ट्रक्चर चाहिए कि जिनके ऊपर वो एल्गोरिदम्स अप्लाई होंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So we can see that the choice of data structures and the choice of algorithm, they can make the difference between a program running in a few seconds or running in many days. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेटा स्ट्रक्चर क्या चूज़ कर रहे हैं और आप एल्गोरिदम कौन सा चूज़ कर रहे हैं।
देयर आर, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बताया था, देयर आर मोर देन डिफरेंट सॉल्यूशंस, मोर देन वन होते हैं। आप उसको असेस करते हैं कि विच सॉल्यूशन इज मोर फीजिबल, और फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। कोई का आपने काम करना हो तो आप उसको एक से ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं, बट वी हैव टू लुक फॉर कि कौन सा जो सोल्यूशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, विच वन इज़ एफिशिएंट देन दी अदर्स, हाउ वी कैन कंजर्व द मेमोरी, हाउ वी कैन मेक द प्रोसेसर एफिशिएंट। इसी तरह उसके साथ साथ अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर भी गलत चूज़ कर लिया तो आपका जो एल्गोरिदम है वो भी शायद इतना एफिशिएंट ना हो, बिकॉज आपकी चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मैटर करती है। ये दोनों क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर हैं। सो हमें एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों का ध्यान रखना है। वी मस्ट हैव टू यूज देम इन एन एफिशिएंट वे। दोबारा एक देखने से देखते हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा है मगर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, उसके ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Programs, they have to follow certain rules to access and process these structured data. तो जब आप डेटा को स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो that becomes structured data। तो प्रोग्राम हैव टू फॉलो certain rules, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेस भी करना है और उस पर कोई प्रोसेसिंग भी करनी है। तो हम यहाँ पर अब एक उसको मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्लस अलाउएबल ऑपरेशन। एक तो हमने देखना है डेटा स्ट्रक्चर में कि हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा। वंस वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन तो उसके ऊपर, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है व्हाट आर द अलाउएबल ऑपरेशंस। एंड बेसिकली दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। वी डिफाइन अ डेटा टाइप एज, डेटा टाइप क्या है कि परमिटेड डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे हमने कुछ डेटा टाइप्स की बात की, जो बेसिक डेटा टाइप्स है, इंटीजर है। इंटीजर इज डेटा टाइप, उसकी हम बता सकते हैं कि उसमें आप क्या स्टोर कर सकते हैं। अब उस पर अलाउएबल ऑपरेशंस क्या हैं, उस पर हमने कहा जी आप उस पर एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सबट्रैक्शन कर सकते हैं, मगर आप उस पर दूसरे चांदे का ऑपरेशंस नहीं कर सकते। जो कैरेक्टर डाटा है उस पर हम एडिशन सबट्रैक्शन नहीं कर सकते, उस पर हमें दूसरे ऑपरेशंस करने होते हैं। इसी तरह जब हमारे फ्लोट टाइप का डेटा है तो वो जिसको रियल पॉइंट भी कहते हैं तो उस पर हम डिफरेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं। बूलियन टाइप का डेटा है तो बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स, उनको हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं रिलेशन से, उसके अलावा हम नहीं कुछ कर सकते। तो सिंपल डेटा टाइप्स कैन बी यूज्ड टू बिल्ड न्यू स्केलर डेटा टाइप्स। अब जो सिंपल डेटा टाइप्स जैसे हमने बात की, बूलियन है, इंटीजर है, फ्लोट है, उसकी मदद से हम एक और जो है एन्यूमरेटेड टाइप भी बना सकते हैं अपनी नई में से। हम टाइप बना लेते हैं कलर्स कि उसमें सिर्फ एट एनी गिवन टाइम चारों में से कोई एक वैल्यू होगी, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। इसी तरह हम फ्लावर्स का एक टाइप बना सकते हैं जिसमें हम मेंशन करते हैं कि जी यही सिर्फ फ्लावर्स हम हैंडल करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो सिमिलरली देयर आर आल्सो सम स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स विच आर ऑफन यूज्ड इन देयर ओन राइट एंड दे कैन फॉर्म द बेसिस फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। इसी तरह हमारे कुछ स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसको अब वो अपने तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, मगर वो उनकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एरेज हमने काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। तो एरेज आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स, लिस्ट्स एंड क्यूज वगैरह के लिए भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़रा से कॉम्प्लेक्स है। एफिशिएंसी हमने कहा था कि अपने जो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एल्गोरिथम में एफिशिएंसी का बहुत रोल है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम विद इन इट्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। तो एफिशिएंट उसी वक्त होगा जब गिवन आपके रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के अंदर वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और कंप्यूटर के अंदर दो जो हैं रिसोर्सेज उनका कंस्ट्रेंट हमेशा रहता है। One is the space, means the storage space, and other is the processing time. The processing time and the storage space are the true resource constraint. तो इसलिए हमें एल्गोरिथम्स को भी एफिशिएंट करना पड़ता है और अपने डेटा स्ट्रक्चर को भी एफिशिएंट करना पड़ता है कि वो मेमोरी मैनेजमेंट प्लस प्रोसेसिंग टाइम को जितना हम शॉर्ट कर सकें हमें करना चाहिए। And the cost of the solution is the amount of resources that the solution consumes. और जो कॉस्ट किसी भी सोल्यूशन की निकालेंगे वो हम इससे मेजर करेंगे कि वो एक
प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया जाता है, जो सोल्यूशन है वो कितने हमारे ये रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। तो वो जितने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा, इट मीन्स कि वो एफिशिएंट नहीं है। और जितने वो बेहतर तरीके से मेमोरी भी बचाएगा, प्रोसेसिंग टाइम भी बचाएगा, तो उस किस्म का जो सोल्यूशन, जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब आता है कि सिलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। तो डिज़ाइनिंग एंड यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर इज एन इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग स्किल, और ये विद द एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे। इस वक्त अगर आप अर्ली स्टेज पर हैं तो आपको शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप फील करेंगे कि ना आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है वो मोल्ड हो जाएगा। और जब आप कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा होगा कि हमें इसके लिए कोई सोल्यूशन चाहिए, तो आप ट्यून हो जाएंगे कि इसको हमें किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यू सिलेक्ट अ डेटा स्ट्रक्चर एज फॉलोज। सबसे पहले आप एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम टू डिटरमिन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स अ सॉल्यूशन मस्ट मीट। जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके हम ये डिटरमिन करते हैं कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे जो एक सॉल्यूशन को मीट करने। फिर हम ये देखते हैं कि डिटरमिन द बेसिक ऑपरेशंस दैट मस्ट बी सपोर्टेड, कि इस डेटा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाएं कि जो बेसिक ऑपरेशन इसको सपोर्ट करेगा, एंड देन वी विल क्वांटिफाई द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स फॉर ईच ऑपरेशन। तो फिर हम उसको साथ ये डिटरमिन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हुए कि इस पर कौन से अलाउबल ऑपरेशंस है और उस पर कितने कितने कंस्ट्रेंट्स टाइम के हवाले से या स्टोरेज स्पेस के हवाले से आ। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि वी हैव टू सिलेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट्स। और हमने अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर्स में से ये भी नोट करना है कि हमें इनमें से कौन सा है हम सिलेक्ट करें कि जो इन कंस्ट्रेंट्स को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल करें। नाउ वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस। वो क्या हो सकते हैं कि ऑल और डेटा इंसर्टेड इनटू द डेटा स्ट्रक्चर एट द बिगिनिंग। क्या हमेशा हमने जो भी नया डेटा आएगा वो बिगिनिंग पे ही इंसर्ट करना है? और आर इंसर्शंस इंटरस्पर्स्ड, मीन्स हेयर एंड देयर विद ईच ऑपरेशन। ये तो नहीं है कि कभी दरमियान में करना है, कभी शुरू में करना है, कभी एंड पे करना है। तो अगर इस किस्म की इंसर्शन है तो उसके हवाले से भी हमने देखना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है वो जो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए। कैन डेटा बी डिलीटेड, क्या डेटा को डिलीट भी करना है? अगर डिलीट करना है तो हमने ये देखना है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डिलीशन जो है वो कदरे आसानी से हो जाएगी और उसमें टाइम भी बचेगा और मेमोरी भी अच्छे तरीके से मैनेज होगी। और ऑल डेटा प्रोसेस्ड इन सम वेल डिफाइंड ऑर्डर और इन सम रैंडम एक्सेस इज अलाउड। हमने ये भी देखना है कि क्या डेटा जो हमने प्रोसेस करना है क्या वो किसी एक खास सीक्वेंशियल ऑर्डर में या किसी खास प्री डिटरमिन ऑर्डर में होगा या रैंडमली, कभी हमने पहले को एलिमेंट को एक्सेस करना है, कभी दरमियान वाले को करना है, कभी एंड वाले को करना है, फिर इस तरह। तो ये चीज़ें भी हमने जो है वो जहन में रखनी है फॉर सेलेक्टिंग अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की फिलॉसफी को एक नज़र देखते हैं कि ईच डेटा स्ट्रक्चर इट हैज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट। इट मीन्स उसके एडवांटेजेस भी होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। उस पर सर्टन कॉस्ट अगर आपको देंगे तो फिर आपको उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। रेयरली ये बहुत कम होता है कि वन डेटा स्ट्रक्चर इज बेटर देन अनदर इन ऑल सिचुएशंस। अमूमन ये होता है कि देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। तो कहीं पे आपका जो है वो एक्सेस जो है वो किसी की बेहतर होती है तो किसी की स्टोरेज मैनेजमेंट बेहतर होती है। तो बेसिकली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा, व्हाट इट डज इट रिक्वायर? इट रिक्वायर स्पेस फॉर ईच डेटा आइटम इट स्टोर्स, उसको स्पेस चाहिए। इट रिक्वायर्स टाइम टू परफॉर्म ईच बेसिक ऑपरेशन। फिर उसको जो डेवलपर है इट नीड्स प्रोग्रामिंग एफर्ट टू इम्प्लीमेंट दैट बेसिक ऑपरेशन। फिर अगर उसमें एरर्स आ जाते हैं तो प्रोग्रामर को डिबगिंग एफर्ट भी करनी है, उसको रिमूव करना है। और फर्दर कभी किसी स्टेज पर उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्स मेंटेनेंस एफर्ट। तो ये जो है ये फ़िलासफ़ी को बहुत ध्यान से आपने सुनना है और उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है। तो ईच प्रॉब्लम हैज़ कंस्ट्रेंट्स ऑन द अवेलेबल स्पेस एंड टाइम। कोई भी आप प्रॉब्लम लेंगे तो उसके अवेलेबल मींस स्टोरेज स्पेस और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से उसके अपने कंस्ट्रेंट्स रहेंगे।
तो ओनली आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स कैन वी नो द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द टास्क। तो जब तक हम प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह मुकम्मल नहीं कर लेते, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि विच इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर फॉर द टास्क। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर आपने बैंकिंग ऑपरेशन है, तो आपने अगर अकाउंट स्टार्ट करना है तो वो फ्यू मिनट्स में हो जाएगा। आप जाएंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देंगे, वो उसको चेक करेंगे एंड योर अकाउंट इज ओपन। आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, फ्यू सेकंड्स में हो जाएंगी। एटीएम पर जाएं, अपना वो फंड्स ट्रांसफ़र करना है, कुछ और करना है, बिल्स पेमेंट करनी है, यू कैन डू इन अ सेकंड। मगर जब आप क्लोज करेंगे अकाउंट, उनको चूँकि प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो इट विल टेक सम टाइम, मे बी एन ओवरनाइट, एक दिन लग जाए पूरा उसको, या इट रिक्वायर्स सर्टन प्रोसेसिंग। तो वहाँ पर हमने बैक एंड पे उस प्रोसेसिंग को मिमिक करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रखना है, तो वो हमें प्रॉब्लम के हवाले से जहन में रखना पड़ेगा। वी मे क्लासिफाई द डेटा स्ट्रक्चर एज आइदर लीनियर और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स। इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं चंद एक आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ, बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू क्लासिफाई। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे स्ट्रक्चर द डेटा आइटम्स इन अ लीनियर सीक्वेंस। जैसे वो एक साथ सीक्वेंस में होते हैं, जैसे कि एरे है, हम एरे को बड़ी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि वो लीनियर सीक्वेंस में है, उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक तरह के होते हैं और वन आफ्टर अनदर पड़े होते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो वो भी लीनियर है। इन अ नॉन लीनियर अगर हम बात करें तो द डेटा आइटम्स आर नॉट इन वन सीक्वेंस। एग्जाम्पल है जैसे बाइनरी ट्री है या सर्च ट्री है, तो वो ट्री जो एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि उसकी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। अब एक दूसरी क्लासिफिकेशंस जो डेटा स्ट्रक्चर्स की हो सकती है वो है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर्स। इससे हवाले से अगर हम ये देखें तो एरे इज द एग्जाम्पल ऑफ अ होमोजीनियस स्ट्रक्चर इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ सेम टाइप, जिसमें तमाम एलिमेंट्स सेम टाइप के। लिस्ट भी आपका वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर है। मगर नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर्स में द एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम टाइप। जैसे हमने देखा स्ट्रक्चर्स हैं, यूनियंस हैं, दे आर नॉन होमोजीनियस या जिनको हेट्रोजीनियस भी कहते हैं। जैसे रिकॉर्ड की हम बात करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड में फील्ड्स पड़े तो एक साथ हैं, लीनियर फॉर्म में है, बट ईच फील्ड कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप। कि पहला फील्ड आपका जैसे नेम है वो स्ट्रिंग हो सकता है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट टाइप की हो सकती है, जो आपका एड्रेस है वो स्ट्रिंग हो सकता है, आपकी जो सैलरी है वो फ्लोट हो सकती है, आपकी जो एज है दैट कैन बी इन इंटीजर और वो पॉजिटिव इंटीजर में होगी। तो यहाँ पर हम ये जो इस हवाले से भी डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन करते हैं कि आया वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। अनदर वे जो क्लासिफिकेशन का है डेटा स्ट्रक्चर का, वो हम ये कह सकते हैं कि जी वो स्टैटिक है या डायनामिक है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं whose sizes and structures they are associated memory locations वो फिक्स हो जाती हैं एट कंपाइल टाइम, कि वो हम कंपाइल टाइम पर हमें उसका पता होता है। जैसे एग्जांपल्स हैं एरेज, रिकॉर्ड्स, यूनियन, ये तमाम हमारे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि कंपाइल टाइम में इनका साइज फिक्स हो जाता है। उसके अगेंस्ट देयर आर सर्टन डायनामिक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर वंस विच एक्सपैंड और श्रिंक as required during the program execution and their associated memory locations change। और उसके एग्जांपल्स में लिंक लिस्ट आ जाएगी, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज। अब ये वाले जो डेटा स्ट्रक्चर है इनको हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर करते हैं कि इनका साइज फिक्स नहीं है, ये रन टाइम पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये फैल के बड़े भी हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर शॉर्ट भी हो जाएंगे। मगर एरेज, रिकॉर्ड्स एंड यूनियंस उनकी मेमोरी लोकेशंस फिक्स रहेंगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम जो है लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। द डेटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इन अ प्रोग्राम एवरी वेरिएबल इज ऑफ सम एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो जब हम हर प्रोग्राम में जितने भी आपके वेरिएबल हैं वो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली किसी न किसी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं। और जब वो किसी डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तो देन इट मीन्स दैट डिटरमिन्स के द सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट आर लीगल अपॉन दैट वेरिएबल। तो जो उनकी टाइप होगी उससे हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम इन पे क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
तो डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी डिस्कस हियर आर टर्म्ड लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स। जो हम इस कोर्स में जिनकी ज़्यादा बात करेंगे वो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। देयर मे बी सेवरल डिफरेंट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन स्टोरेज पॉसिबल फॉर ईच लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। तो हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर उसको हम फिजिकली मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देयर विल बी मैनी वेरिएशंस, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। So for each data structure that we consider, several possible mappings of storage will be introduced. तो वो स्टोरेज पर एक्चुअली कैसे मैप होंगे, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। हम इस कोर्स में उन पर देखेंगे कि हम तो ज़्यादातर फोकस हमारा लॉजिकल पर होगा, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम उस डेटा स्ट्रक्चर को फिजिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देयर आर सम primitive and simple structures हैं। some are primitive, that is they are not composed of other data structures, जिनको हम स्केलर टाइप भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स उसमें इंटीजर्स हैं, booleans हैं, कैरेक्टर्स हैं। then there are other data structures can be constructed from one or more primitive। फिर आप इन primitive की मदद से एक या एक से ज़्यादा जो प्रिमिटिव इनको मिला के आप मज़ीद डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो वो बेसिक टाइप इंटीजर्स मिल के ही तमाम होमोजीनियस है, वो मिल के एरे बना देते हैं, विच इज़ अनदर डेटा स्ट्रक्चर। इंटीजर, बूलियन और कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को मिला के हम रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं, यूनियंस भी बना सकते हैं। तो जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली दे आर बिल्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव। उसमें एग्जांपल्स आपकी आ जाती हैं स्ट्रिंग्स, एरेज एंड रिकॉर्ड्स। और मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दे सपोर्ट दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। उसमें बिल्ट इन उन्होंने ऑपरेशनल जो अलाउबल हैं वो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं ताकि आपको प्रोग्रामिंग करते हुए नए सिरे से एफर्ट ना करनी पड़े। और एग्जिस्टिंग जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं उनकी मदद से आप अपना काम बखूबी और बआसानी कर सकें। लीनियर एंड नॉन लीनियर के हवाले से देख लेते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हमने कहा था कि जैसे कि देयर आर टू फंडामेंटल काइंड ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, दे आर लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप दे रिप्रेजेंट। तो इसमें जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी विल डिस्कस, दे इंक्लूड स्टैक्स, क्यूज एंड लीनियर लिंक लिस्ट। तो ये आप अपना जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। दी नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी विल डिस्कस इन आवर कोर्स इंक्लूड्स ट्रीज एंड ग्राफ्स, एंड वी विल फाइंड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्री स्ट्रक्चर दैट आर यूजफुल इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि वो बी ट्रीज और एरे ट्रीज जो हैं हाउ दे आर यूजफुल। इसी तरह हम डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं हाउ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में दे आर मोर सूटेबल एंड मोर अप्रोप्रिएट। इसके अलावा फाइल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेटा स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स अप्लाइड टू कलेक्शन ऑफ डेटा दैट आर मैनेज्ड एज ब्लैक बॉक्सेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर कॉमनली कॉल्ड द फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो डेटा फाइल आप बनाते हैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। आपकी जो फाइल है इट कैरीज अ नेम, इट कैरीज कंटेंट्स एंड इट कैरीज अ लोकेशन वेयर इट इज केप्ट, एंड इट आल्सो रिक्वायर्स सम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि हु इज द ओनर ऑफ दैट फाइल, how big it is at any point of time। तो इसमें जो है there are 4 basic kinds of file organizations, जिसमें sequential file है, relative file है, index sequential file है and multi key files है। And these organizations they basically determine how the contents of these they are structured, and they are built on the डेटा स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स। ऑल दीज जो हमने इन 4 फाइल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, सिक्वेंशियल है, रिलेटिव हैं, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स हैं एंड मल्टी की फाइल्स हैं, दे आर बिल्ड ऑन सर्टेन डेटा स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स। अगर हम इसको एक टेबल फॉर्म में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हम ये देखेंगे जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर, फ्लोट इसमें शामिल हो सकते हैं। ये प्रिमिटिव हैं, इनके ऊपर अलाउबल ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी देखे हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स में हमने स्ट्रिंग्स, एरेज और रिकॉर्ड्स को भी एक नज़र देखा है। ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो आपको बिल्ट इन ये फंक्शंस इनके प्रोवाइड कर देती हैं। ये सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स है। उसके अलावा फिर हम कंपाउंड में जो है 2 हमने जिक्र किया था कि एक लीनियर है और एक
नॉन लीनियर है। लीनियर में स्टैक्स, क्यूज और लिंक लिस्ट ये शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये भी लीनियर है। मगर हमने कहा था कि जो नॉन लीनियर में दो तरह के आ जाते हैं, बाइनरी है, बाइनरी मीन्स कि हमेशा 2 के हिसाब से होगा, और एक एन एरे है कि वो 3 और मोर देन 3 पे भी जा सकता है। तो बाइनरी नॉन लीनियर में है, बाइनरी ट्रीज हैं, बाइनरी सर्च ट्रीज हैं, जबकि एन एरे में ग्राफ्स हैं, जनरल ट्री हैं, एम वे सर्च ट्रीज हैं, बी माइनस ट्री हैं, बी स्टार, बी प्लस ट्रीज हैं, और उसके बाद ट्राई है। और इसके अलावा जो चौथी जो हमने चीज़ जो देखी दैट इज़ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सिक्वेंशियल है, रिलेटिव है, इंडेक्स सिक्वेंशियल है और मल्टी की है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली होप कि यहाँ तक जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इनको समझने में आपको कतई कोई परेशानी नहीं हुई होगी। Why data structures are required? Data may be organized in many different ways. So logical, और basically हम ये कह सकते हैं कि it is a logical or mathematical model of a particular organization of data. So what is data structure? Another definition can be it's a logical or mathematical model of a particular organization of data. तो अब अगर हम ये देखें तो the choice of a particular data model, it depends on 2 considerations. The first one is it must be rich enough in structure to mirror the actual relationships of the data in the real world. पहली ये कंसिडरेशन में ये देखनी है कि वो उसका स्ट्रक्चर इतना रिच हो कि वो उस चीज़ को मिरर कर ले जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। एंड द सेकंड हमने ये भी देखना है कि उसके साथ साथ द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ that one can effectively process the data when necessary. और उसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होना चाहिए कि जब हमें उसको प्रोसेसिंग करनी हो तो वो हमारा टाइम भी बचाए प्लस स्पेस की भी बचत करे। तो डेटा स्ट्रक्चर्स पर ऑपरेशंस भी होंगे। तो डेटा अपीयरिंग इन आवर डेटा स्ट्रक्चर्स आर प्रोसेस्ड बाय मीन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस। In fact, the particular data structure that one chooses for a given situation, it depends largely on the frequency with which specific operations are performed. तो कोई भी पर्टिकुलर डेटा सिचुएशन जो डेटा स्ट्रक्चर आप एक गिवन सिचुएशन के लिए चूज़ करेंगे, ये हमेशा उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपने वो स्पेसिफिक ऑपरेशन कितनी फ्रीक्वेंसी से परफॉर्म करने हैं और कब करने हैं। अगर हम नॉर्मली जो डेटा स्ट्रक्चर्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो 6 हैं। जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं। पहले ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग में डिफरेंस है, उसको बड़ा गौर से समझना है आपने। ट्रैवर्सिंग है कि एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन आइटम्स इन द रिकॉर्ड्स मे बी प्रोसेस्ड। हम इसको ये कह सकते हैं दिस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग इज समटाइम कॉल्ड विजिटिंग द रिकॉर्ड। तो ट्रैवर्सिंग ऐसा है कि हमने हर डेटा स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट को एटलीस्ट वंस एक्सेस करना है फॉर सम काइंड ऑफ प्रोसेस। तो उसमें लाजमन है कि वो पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक हर एलिमेंट जो है उसको आप एक्सेस करेंगे। दूसरा है सर्चिंग। सर्चिंग है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड विद अ गिवन की वैल्यू। कोई आपको की वैल्यू देंगे कि आप इसकी मदद से आप उस रिकॉर्ड को तलाश करेंगे उस डेटा स्ट्रक्चर में। और फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशंस। और ये भी हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस की मदद से आप कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स को करना चाहें, मगर वंस यू फाउंड दैट क्राइटेरिया उसके बाद फिर आप सर्चिंग ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने एक गिवन की वैल्यू पे एक ही रिकॉर्ड फाइंड करना है तो जैसे ही वो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप लाजमन एंड तक प्रोसेसिंग करें, आप वहीं पर उसको ख़त्म करेंगे और वापस आ जाएंगे। इसलिए ट्रैवर्सिंग में और सर्चिंग में ये डिफरेंस है कि ट्रैवर्सिंग में आपने उस डेटा स्ट्रक्चर के आखिरी एलिमेंट तक हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है, जबकि सर्चिंग में जैसे ही आपको वो मिल जाए तो ये नॉट नेसेसरीली कि आप बाकियों को भी उसको एलिमेंट्स को देखें। सो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर आप कर सकते हैं। इंसर्शन के एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड टू द स्ट्रक्चर, को नई आपने रिकॉर्ड डालना है। और डिलीटिंग रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर फॉर सम पर्पसेस। इसके अलावा ये जो है समटाइम्स 2 और मोर ऑपरेशंस में बी यूज्ड इन अ गिवन सिचुएशन। इसके अलावा बाद को आते हैं कि जैसे वी मे वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड विद अ गिवन वैल्यू, तो विच मे मीन्स कि वी फर्स्ट नीड टू सर्च फॉर द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड एंड इफ इट इज़ फाउंड देन वी हैव टू डिलीट इट। तो एक ही ऑपरेशन के अंदर हम 2 ऑपरेशंस कर रहे हैं।
इसके अलावा जो अदर टू ऑपरेशंस हैं विच आर यूज्ड इन स्पेशल सिचुएशन, दे आल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड. One is sorting. Sorting means arranging the records in some logical orders, either ascending or descending or whatever. For example, आप किसी नेम की को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली, और इन न्यूमेरिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम नंबर की, सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर, अकाउंट नंबर. आप जैसे CNIC कार्ड नंबर हो सकता है, आपका NTN नंबर हो सकता है, और ये सॉर्टिंग ऑन बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया आप करेंगे. देन वी नीड टू डू मर्जिंग. मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन टू डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल. के दो आपकी डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स हैं, उनको आपने मर्ज करके एक फाइल बनाना है. तो ये अमूमन जो बिजनेस एप्लीकेशंस उनमें बहुत इस्तेमाल है. मास्टर और स्लेव फाइल का कॉन्सेप्ट है, ट्रांजैक्शन फाइल्स हैं, मास्टर कॉपिंग फाइल्स हैं, उनकी आपस में मर्जिंग हो जाती है. इसके अलावा जो अदर ऑपरेशंस आप डेटा स्ट्रक्चर्स पर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कॉपिंग ऑपरेशंस हैं, जिसमें आप एक डेटा स्ट्रक्चर से एलिमेंट्स को दूसरे में कॉपी करते हैं. कॉन्केटिनेशन हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो आपस में. एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि an organization contains a membership file in which each record contains the following data for a given member. किसी मेंबर के लिए हम ये डाटा रख रहे हैं कि what is the name of the member, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी एज और उसके सेक्स. अब उस पर ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अनाउंस अ मीटिंग थ्रू अ मेल, देन वन वुड ट्रेवर्स द फाइल टू ऑब्टेन द नेम एंड एड्रेस फॉर ईच मेंबर. हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा, वो मीटिंग के लिए उन्होंने मेल करना है, तो हमें हर रिकॉर्ड को प्रोसेस करना पड़ेगा सो दैट वी कैन हैव द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द ईच मेंबर टू बी पेस्टेड ऑन द मेलिंग लिस्ट. एंड अदर ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सपोज वन वांट्स टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स लिविंग इन अ सर्टेन एरिया, अगेन वी हैव टू ट्रेवर्स द होल फाइल टू ऑब्टेन द डेटा. इसमें हमें फिर ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी कि जैसे हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे कितने मेंबर्स हैं कि जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं. उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि सपोज वन वांट्स टू ऑब्टेन एड्रेस फॉर अ गिवन है, आपका नेम गिवन है, उस पर आपने सिर्फ एड्रेस फाइंड करना है, तो उसमें हमें ट्रैवर्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन ओनली सर्च फॉर द फाइल फॉर द रिकॉर्ड इज कंटेनिंग नेम. वंस वी फाउंड द नेम वी कैन कम बैक एंड वी कैन प्रोवाइड द एड्रेस फॉर दैट स्पेसिफिक पर्सन. वी डोंट नीड टू ट्रैवर्स द होल फाइल. इसी तरह सपोज अ न्यू पर्सन जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन, देन वन वुड हैव टू इंसर्ट हिज और हर रिकॉर्ड इनटू द फाइल. इसके अलावा सपोज अ मेंबर डाइज अनफॉर्चुनेटली, देन वन वुड हैव टू डिलीट हिज और हर रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल. तो उस पर यह ऑपरेशन करना पड़ेगा. एंड सपोज अ मेंबर हैज़ मूव्ड एंड हैज़ अ न्यू एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, वो जगह उसकी चेंज हो गई है, तो गिवन द नेम ऑफ द मेंबर वन वुड फर्स्ट नीड टू सर्च फॉर द record in the file. आपको सर्च करना है, एंड उसके बाद once the record is found then would you have to perform the update operation, which means change items in the records with the new data. इसके अलावा हम ये जैसे कह सकते हैं कि सपोज एक ऑपरेशन करना है कि वन वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर 65 years और older than 65 years. तो इसमें अगेन वन वुड रिक्वायर टू ट्रेवर्स द होल फाइल एंड वी हैव टू काउंट सच मेंबर्स कि कितने मेंबर्स हैं और क्या है. तो आज हम सबसे पहले एक लीनियर एरे के डेटा स्ट्रक्चर को लेते हैं. हम वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली लीनियर एरे क्या है. कि इट्स अ लिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर n ऑफ होमोजीनियस डेटा. कि जो लीनियर एरे है वो लिस्ट है फाइनाइट नंबर n की, और उसमें जितने नंबर n होंगे वो होमोजीनियस होंगे, एक ही टाइप के होंगे. डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप सच दैट the elements are referenced respectively by an index set consisting of n consecutive number. कि उसमें जो उसका इंडेक्स सेट होगा, जो उसका सबस्क्रिप्ट होगा, वो consecutive n numbers होंगे. And these elements, जितने n elements हैं, they are stored respectively in successive memory locations, one after another sequence में memory में एक ही जगह पे पड़े होंगे. और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है इज कॉल्ड द लेंथ और साइज ऑफ द एरे. इन जनरल द लेंथ और द नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ द एरे इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंडेक्स सेट बाय द फार्मूला के लेंथ इक्वल्स अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, where UB is the largest index and it is called the upper bound
and LB is the smallest index which is called the lower bound of the array. नंबर k जो है इन a और ब्रैकेट्स में k is called a subscript or an index, और ak is called a subscripted variable. ak itself एक subscripted variable बन जाएगा, not a whole array. Note that the subscripts they allow any element of a to be referenced by its relative positions in a. जो subscript है वो basically relative position बताता है कि वो उसकी array में कहाँ पर है. एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं कि लेट डेटा बी अ 6 एलिमेंट लीनियर एरे ऑफ इंटीजर सच दैट डेटा 1 में वैल्यू बढ़ी है 247, डेटा 2 में 56, डेटा 3 में 429, डेटा 4 में 135, डेटा 5 में 87, डेटा 6 में 156. तो उसकी अब उसकी अरेंजमेंट बेसिकली इट्स अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. वो इस फॉर्म में हो या मेमोरी में इस तरह पड़ा हो, इकट्ठा ही पड़ा होगा. और ये आप देखेंगे डेटा इज एन एरे है, उसके पहले मेंबर में 247. ख्याल रहे कि दिस एग्जांपल इज नॉट फ्रॉम द सी लैंग्वेज, इसलिए हम जीरो से नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं कि एक डाटा स्ट्रक्चर जो लीनियर एरे है इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है, मगर उसको कोई भी फार्मूला जो है वो इसी तरह है कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो 6 माइनस 1 इज 5 प्लस 1 6. तो इसमें हमें मिल गया कि उसमें कितने उसका इंडेक्स जो है वो 6 एलिमेंट्स का है. एंड उसमें जो सब्सक्रिप्ट्स हैं इन सी लैंग्वेज इट मे बी फ्रॉम 0 to 6 एंड इन सम अदर लैंग्वेजेस इट मे बी फ्रॉम 1 to 6. सी लैंग्वेज में लोअर बाउंड जो है वो फिक्स कर दी गई है 0 पे, उसके अलावा नहीं हो सकती. अपर बाउंड इज टू बी डिफाइंड बाय द यूज़र एज एन इंटीजर. जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सी लैंग्वेज में हम इसकी डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि इंट x इज अ सब्सक्रिप्टेड और एरे है जिसका साइज 6 है, और उसके जो सब्सक्रिप्ट्स होंगे वो इंडेक्स जो है वो 0 से 5 तक होगा. और उसके ज़रिए हम ये फॉर लूप के ज़रिए फिक्स नंबर है वो यूजिंग द फॉर लूप. और हम इस एग्जांपल के तौर पर हम ये ले रहे हैं कि हर एलिमेंट में 2 को j से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो उसके उस एलिमेंट में हम शामिल कर देंगे. जो एरे डिक्लेरेशन हमने की आपको क्विक रिवीजन कर लेते हैं. इंट x6 एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ द सेम टाइप, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, इंटीजर है. और इस कलेक्शन का अपना नाम x है. दिस सेल्स आर नंबर्ड विद कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एंड टू एक्सेस अ सेल वी यूज द एरे नेम एंड इंडेक्स सच एज x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5. एरे का अगर हम लेआउट देखें तो एरे सेल्स आर कंटिगुअस इन कंप्यूटर मेमोरी. द मेमोरी कैन बी थॉट ऑफ एन एज एन एरे. तो इस तरह वो इकट्ठे एक साथ ही पड़े होंगे वन आफ्टर अनदर. जो इंटीजर हैं तो अगर वो आपका सपोर्ट जो है वो 2 बाइट्स है तो ईच एलिमेंट विल कंटेन 2 बाइट्स इन दी मेमोरी. अगर वो 4 बाइट्स का है तो ईच एलिमेंट विल टेक 4 बाइट्स इन दी मेमोरी. तो x जो है वो बेसिकली इज एन एरे नेम है, बट देर इज नो वेरिएबल x. तो x इज नॉट एन एल वैल्यू. x एल वैल्यू नहीं है क्योंकि वो पूरे एरे का नेम है, किसी एक वेरिएबल का नहीं है. इट्स नॉट अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल. तो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं इस कोड में कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए a और b. तो हम जब भी ये रखेंगे कि वी कैन राइट b इक्वल्स 2 इज असाइंड टू b, b इज असाइंड टू a, 5 इज असाइंड टू b, मगर हम कभी ये नहीं लिख सकते कि a इज असाइंड टू 2 क्योंकि 2 कांस्टेंट है. इट मस्ट बी अ वेरिएबल, इट मस्ट बी एन एल वैल्यू. ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी इस चीज़ को देखा था. तो x जो है वो बजाते खुद एल वैल्यू नहीं है. जैसे हमने इंट x6 एरे डिक्लेयर किया 6 एलिमेंट्स का, इंट n है, तो x जो 0 है दैट इज अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल. और ये वेरिएबल है जो सब्सक्रिप्ट है, जो एलिमेंट है एलिमेंट इटसेल्फ जो है वो चूंकि आपका सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है, उसका मेमोरी एड्रेस है, तो वो एल वैल्यू है. तो 5 ये अलाउड है. x ऑफ 1 को आप 2 की वैल्यू दें, ये अलाउड है. मगर हम ये कहें कि होल एरे को x इज एन एरे नेम, उसको हम 3 करें या a प्लस b करें या उसको हम एड्रेस दे दें n का, तो दीज आर नॉट अलाउड क्योंकि वो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल नहीं है. सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल इज विल बी एन एल वैल्यू. x जो एरे नेम जो है इट इज़ नॉट एन एल वैल्यू. डायनामिक एरेज को हम थोड़ा सा क्विकली हम देख लेते हैं कि यू वुड लाइक टू यूज एन एरे डेटा स्ट्रक्चर बट यू डू नॉट नो द साइज ऑफ द एरे एट कंपाइल टाइम. आपको नहीं पता, तो यू फाइंड आउट व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स दैट यू नीड एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n इक्वल टू 20. तो यू कैन यूज द एरे यूजिंग द न्यू ऑपरेटर. आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं न्यू इन 20. अब यहाँ पे भी मगर एरे का साइज हमेशा फिक्स रहेगा. आप उसके बाद सब्सक्रिप्टिव वेरिएबल के जरिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यूज द सेम रहेगा.
तो y इज एन एल वैल्यू, इट इज बिकॉज y, अब यहाँ इस केस में y इटसेल्फ इज एन एल वैल्यू, क्योंकि while इज अ पॉइंटर टू एन एरे और पॉइंटर टू एन इंटीजर है. बेसिकली इट इज अ पॉइंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ 20 consecutive cells in memory. It can be assigned a value. The new operator returns an address that is stored in y. We can write that कि y is equal to, जब हम ये इसको 0 को दें या y is equal to x करें तो y can appear on the x can appear on the right. Y gets the address of the first cell of the x array. जब आपको ज़रूरत नहीं है, चूँकि न्यू से आपने क्रिएट किया हुआ है, तो वी मस्ट फ्री द मेमोरी वी गॉट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर वंस वी आर डन विद द वाई एरे. तो फिर हम उसको इस सिंटैक्स के साथ कमांड देंगे तो वो उसको रीएलोकेट कर देगा हीप में. बट वी विल नॉट डू दिस टू द एक्स एरे बिकॉज वी डिड नॉट यूज द न्यू ऑपरेटर टू क्रिएट हिम. वाई के साथ तो ये कर सकते हैं, एक्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि एक्स स्टैटिक था, जबकि वाई के ज़रिए जो हमने वो किया वो डायनामिक था. तो आज हम सबसे पहले जो है एक लिस्ट, जो बड़े कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है, उसकी हम बात करते हैं. आज की स्टार्ट करते हैं. द लिस्ट इज अमंग द मोस्ट जेनरिक ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. सबसे जो जेनरिक डेटा स्ट्रक्चर है वो लिस्ट है. तो रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आप बहुत सारी लिस्ट क्रिएट करते हैं. जैसे आप शॉपिंग पे जाना हो तो यू शॉपिंग की लिस्ट लेते हैं. अगर आपने जुमा बाज़ार, इतवार बाज़ार या किसी इस किस्म की, तो आप ग्रॉसरीज की लिस्ट बनाते हैं कि आपको सब्ज़ी, दालें, चावल, दूध और मुख्तलिफ मसाला जात चाहिए. आपने अपने घर में कोई डिनर देना है और उसके लिए आप लिस्ट ऑफ पीपल बनाते हैं कि किनको इनवाइट किया जाएगा. आप लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स बनाते हैं जो आपने लोगों से लेने हैं या लोगों को देने हैं. तो बेसिकली वी मेक अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन आवर डेली लाइफ. तो लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप. इसमें जो आप ये देखें, चाहे वो ग्रॉसरी आइटम्स हों, लिस्ट ऑफ नेम्स हों, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हों, दे आर ऑल ऑफ द सेम टाइप. उनकी टाइप सेम होगी. तो द आइटम्स और एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट दे आर स्टोर्ड इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर. वो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होंगे. तो इट इज़ पॉसिबल. अब उस पर हम ऑपरेशंस के लिस्ट पे जो ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं कि इंसर्ट कर सकते हैं न्यू एलिमेंट्स इनटू द वेरियस पोजीशन इन द लिस्ट. वी कैन आल्सो रिमूव एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. हम जब चाहें उसमें से निकाल सकते हैं. तो लिस्ट को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन अ लीनियर ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डेटा वैल्यूज़ हैं A1 2 3 4, दे कैन बी अरेंज्ड इन अ लिस्ट जिसमें A3 पहला है, A1 दूसरा है, A2 तीसरा है और A4 चौथा है. तो इस लिस्ट में जो है वो A3 इज द फर्स्ट एलिमेंट, A1 इज द सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन. बट ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन. कोई ना कोई ऑर्डर जरूर होगा. अगर हम कोई लिस्ट पे ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, दे कैन बी डिफरेंट. हम ख्याल रहे कि वी आर डिस्कसिंग द डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट एट द लॉजिकल लेवल. हम इसकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. सबसे पहले वी आर टॉकिंग राइट नाउ इन लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर. तो यूजफुल ऑपरेशंस हम जब कर सकते हैं तो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट. एक ऑपरेशन हो सकता है विच विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट. प्रिज्यूमेबली आप कह सकते हैं कि द लिस्ट इज एम्प्टी. आप क्रिएट कर ले विद एम्प्टी लिस्ट. कॉपी ऑपरेशन कर सकते हैं आपके, यू सेट वन लिस्ट टू बी अ कॉपी ऑफ अनदर लिस्ट. आप क्लियर कर सकते हैं. क्लियर लिस्ट मीन्स डू यू हैव टू रिमूव डिलीट ऑल द एलिमेंट्स. उसको आप क्लियर कर रहे हैं. इंसर्ट कर रहे हैं एक्स और उसके साथ क्वेश्चन मार्क. तो यू हैव टू इंसर्ट, इट मीन्स कि ये ऑपरेशन करना है कि आपने इंसर्ट करना है एलिमेंट एक्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द लिस्ट. कि भाई चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, 10वें नंबर पे कहीं ना कहीं इंसर्ट करना है. इसी तरह डिलीट के साथ क्वेश्चन मार्क है, मींस यू हैव टू रिमूव द एलिमेंट एट सम पोजीशन. यहाँ पे पोजीशन देना ज़रूरी है कि लिस्ट में किस पोजीशन के एलिमेंट को आप डिलीट करना चाह रहे हैं. जो गेट वाला है ये सिमिलर टू है रिट्रीव के ही, कि यू गेट एन एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन. कि आप एक पोजीशन देते हैं और वहाँ से लिस्ट में जो है उसको आपने रिट्रीव करना है. अपडेट हो सकता है कि रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन विद एक्स. के जो एलिमेंट एक गिवन पोजीशन पर है उसको एक्स के जरिए आप अपडेट करना चाह रहे हैं. फाइंड एक्स मीन्स सर्चिंग है कि यू डिटरमिन इफ द एलिमेंट एक्स इज इन द लिस्ट और नॉट प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो किस लोकेशन पर है. उसके अलावा लेंथ का ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट पे, विच मीन्स यू हैव टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द लिस्ट कि इसमें इस वक्त कितने मेंबर्स मौजूद हैं. लिस्ट के ऑपरेशंस की अगर आप बात करें तो वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज मेंट बाय पर्टिकुलर पोजीशन.
एंड इसके लिए फ़िलहाल हमने जो पीछे ऑपरेशन में देखा तो क्वेश्चन मार्क को इसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं है कि पर्टिकुलर पोजीशन वो हमें बताएगा कि लिस्ट में किस पर्टिकुलर पोजीशन पर हम वो काम करना चाहते हैं। अब उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर हम देखें तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यू कैन यूज़ द एक्चुअल इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इंसर्ट आफ्टर एलिमेंट 3, गेट एलिमेंट नंबर 6। तो अगर तो इस किस्म का पॉसिबिलिटी है तो देन द अप्रोच इज़ टेकन बाय एरेज। ये वो अप्रोच है जो एरेज ने इख्तियार की है। तो आप अगर लिस्ट को इन द फॉर्म ऑफ एरेज इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फिर इस किस्म से होगा। इसके अलावा यू कैन यूज़ अ करंट मार्कर और पॉइंटर टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। आप कोई करंट मार्कर रख सकते हैं, पॉइंटर रख सकते हैं। तो अगर आपने ये काम करना होगा तो फिर उसके लिए जो है वो एरे इज़ नॉट द सूटेबल चॉइस, तो उसको लिए फिर हमें ज़रा कोई लिंक लिस्ट या कोई इस किस्म की चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अगर हम करंट मार्कर यूज़ कर रहे हैं फिर देन अगर हम लिंक लिस्ट के हवाले से बात करेंगे तो 4 मेथड्स यूज़फुल हो जाएगा। स्टार्ट मीन्स कि मूव टू करंट पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, टेल पे जाना मीन्स मूव द करंट पॉइंटर टू द वेरी लास्ट एलिमेंट पे आप उसको ले जाएं। नेक्स्ट मीन्स कि मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड बाय 1 एलिमेंट, बैक करना है मूव द करंट पोजीशन बैकवर्ड 1 एलिमेंट आप उस पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द लिस्ट यूजिंग एरेज। तो उसमें वी हैव डिजाइन्ड द इंटरफेस फॉर द लिस्ट। वी नाउ मस्ट कंसिडर हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। Implementing list using an array, for example, you can have a list of integers 2, 6, 8, 7, 1 and they could be represented as in an array। आप ये बता सकते हैं कि भाई एक array है जिसका साइज तो शायद 8 मेंबर्स का, मगर करंटली इसमें 5 हैं। साइज उसका हमारे पास इस वक्त 5 है और करंटली आप उसको इस वक्त जो करंट लोकेशन है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं वो 3rd एलिमेंट है। ट्रेवर्सिंग अगर लिस्ट की हम बात करें जैसे लीनियर एरेज की भी हम हो तो लेट ए बी अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर and suppose we want to print the contents of each element and suppose we want to count the number of elements of A with a given property। तो this can be accomplished by traversing A, क्योंकि हमने उसका हर मेंबर को एक्सेस करना है एंड प्रोसेसिंग we call frequently, हम इसको विजिटिंग भी कहते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द ए एग्जैक्टली वंस हमने देखना है, उस पर हमने एक तो उसको प्रिंट करना है कॉन्टेंट्स को और हमने ये कुछ सर्टन क्राइटेरिया के ऊपर गिवन प्रॉपर्टी के ऊपर कार्ड वो भी करना है। तो अभी हम जो एल्गोरिथम अभी नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे, इट ट्रैवर्सेस अ लीनियर एरे। एल ए की हम बात कर लेते हैं। द सिंप्लिसिटी ऑफ द एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट लीनियर एरे इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। Other linear structures such as linked list can also be easily traversed. On the other hand, the traversal जो कि non-linear structures हैं such as trees and graph वो considerably more complicated है, जिसको हम आइंदा लेक्चर्स में देखेंगे। एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्म में मैं इसको सूडो कोड लिख रहा हूँ कि here LA is a linear array with lower bound LB and upper bound UB. This algorithm traverses the LA जो linear array है applying an operation process to each element of LA। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे k और उसमें लोअर बाउंड को k में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपने रिपीट करना है स्टेप नंबर 3 और 4 जब तक कि जो k है इज़ लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप विजिट करेंगे एलिमेंट को तो यू विल अप्लाई सम प्रोसेस टू दी LAK जो लोअर बाउंड के हिसाब से शुरू हुआ है। उसके बाद आप k को सेट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे k+1 करेंगे और ये जो स्टेप 3 और 4 है इसको हम रिपीट करते जाएंगे जब तक k इज़ लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड है। वंस इट इज़ डन तो ये लूप उसी वक्त ब्रेक होगी जब k जो है वो ग्रेटर देन अपर बाउंड हो जाएगा एंड एट दैट टाइम द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ टू एग्जिट। अगर हम इसको थोड़ा सा इसी एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन देख लें सी लैंग्वेज में तो वी आर डिस्कसिंग द वॉइड ट्रैवर्स इंट ए और इंट साइज, जिसमें हमने ये ए को जो है एज एन एरे पास किया है, पास बाय फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पास बाय वैल्यू कर लिया है। इंट साइज है तो इंट आई काउंट 0 हमने 2 रखे हैं। एक आई जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल फॉर कंट्रोलिंग द लूप और काउंट के ज़रिए हम कुछ काउंटिंग उसमें करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि फॉर आई इक्वल्स 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं कि इफ़ आई जो है
इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप उसको प्रिंट भी करें और उसको काउंट भी करें कि क्या वो 0 से ज़्यादा वैल्यू रखता है। और अब उस लूप के बाद जो है आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं कि प्रिंट एफ कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इज़ काउंट। तो आप ये भी बता रहे हैं कि ग्रेटर देन जो है वो काउंट वो कितने हैं। ऐड का ऑपरेशन आप कर सकते हैं, ऐड 9, इट मीन्स कि आपकी करंट पोजीशन अगर 3 है, द न्यू लिस्ट वुड दस बी 2 6 8 9 3 7 1। आप वी नीड टू शिफ्ट एवरीथिंग टू द राइट ऑफ 8, 1 प्लेस टू द राइट टू मेक प्लेस फॉर द न्यू एलिमेंट 9। कि आप करंट पोजीशन 3 था एरे में उस लिस्ट में, आप उसमें वहाँ पर उसके बाद करंट पोजीशन के बाद ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको हम ऐड करेंगे। तो स्टेप 1 उसमें क्या होगा कि चूँकि करंट जो पोजीशन है वो 3 है और उसका टोटल साइज़ 5 है, इस वक्त करंट साइज़ जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है। करंटली आप थर्ड के बाद करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जो 7 1 इधर था उसको पहले शिफ्ट करेंगे इस तरफ, और उसके बाद जो है स्टेप 2 में आप इसको 4th पोजीशन पर जो है इसको करेंगे। एंड नाउ इट करंट इज़ नाउ पॉइंटिंग टू द न्यू एलिमेंट विच इज़ 9 और साइज़ अब बढ़ के 6 हो गया। नेक्स्ट जो है आपका ऑपरेशन हो सकता है कि इट मीन्स कि आप जो है वो नेक्स्ट आइटम को प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो करंटली 5 है तो मीन्स आप नेक्स्ट मीन्स कि वो करंट को नेक्स्ट एलिमेंट पे ले जाएगा, मीन्स कि वो बजाय 4th के 5th एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और देयर आर सम स्पेशल केसेस हो सकते हैं फॉर पोजिशनिंग द करंट पॉइंटर। वो ये भी हो सकता है कि आपका वो पास द लास्ट सेल तो नहीं चला गया या बिफोर द फर्स्ट सेल तो नहीं आपने उसको करना है पोजीशन। तो ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस होंगी, इनको भी हमने चेक करना है। अब मगर ये वी हैव टू वरी अबाउट दोज व्हेन वी एक्चुअली राइट द कोड, इसको हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे। अभी मैं आपको जो मेरा फोकस है वो लॉजिकल लेवल पर है कि लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। इसी तरह जो रिमूव का है, रिमूव द एलिमेंट एट द करंट इंडेक्स, तो इस वक्त करंट इंडेक्स 5 पे था, उस पर जो एलिमेंट है उसको हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने का मतलब ये है कि उसको हम वहाँ से निकालेंगे और जो अगले उसके बाद वाले नंबर हैं उनको हम बैक करके लिस्ट में वापस ले आएंगे। और यहाँ से साइज़ को भी हमने डिक्रीज़ करना है 5, और जब हम उसको मूव करेंगे उसके बाद देखेंगे कि आफ्टर डिलीशन जो है वो आपके लिस्ट जो है वो 2 6 8 9 1 रह जाएगी। करंटली वो 5th एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और उसका साइज़ भी 5 है। तो we fill the blank spot left by removal of 7 by shifting the value to the right of position 5 over to the left 1 space। तो बेसिकली हम इस तरीके से उसमें रिमूवल करेंगे या डिलीशन करेंगे। फाइंड का जो है वो ये बेसिकली सर्चिंग ही है कि वी विल ट्रैवर्स द एरे अंटिल एक्स इज लोकेटेड, पूरा नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम क्राइटेरिया भी दे रहे हैं कि इंट फाइंड इंट एक्स। तो यहाँ पर हम ये बेसिकली एक्स वो क्राइटेरिया है कि जिसके हम उसको देखना है कि वो क्या एरे में मौजूद है या नहीं है। तो हम यहाँ पर उसको जे के साथ देख रहे हैं, जे फ्रॉम 1 टू साइज +1 करके हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स जे के बराबर है। अगर तो वो है इट मीन्स कि वो हमें मिल गया है। तो करंट पॉइंट्स टू वेयर एक्स इज फाउंड, तो वो हम करंट में पोजीशन दे देंगे, रिटर्न करेंगे 1 विच इज़ फॉर ट्रू, और रिटर्न और अगर नहीं है तो वो क्या होगा कि बेसिकली हम रिटर्न 0 करेंगे विच मीन्स कि इट्स फॉल, 0 मीन्स फॉल्स एंड इट इंडिकेट्स दैट द नंबर एक्स विच आर सपोज्ड टू बी फाउंड वो हमें नहीं मिला। अदर ऑपरेशंस जो लिस्ट पर हो सकते हैं हम उसको भी एक नज़र क्विकली देख लेते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इनकी डिटेल में एल्गोरिथम्स भी देख लेंगे। कि गेट में मतलब ये है कि आपने इस वक्त देखना है कि एक करंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसको गेट कर लें। अपडेट करना है तो इट मीन्स कि एक्स को जो करंट लोकेशन पर जो है उसको आप अपडेट कर दें, मीन्स वैल्यूज चेंज कर दें। तो जो एक्स की वैल्यू आप देंगे वो ए ऑफ करंट पर उसको अपडेट कर देगा। लेंथ, अगर आप लेंथ का जो फंक्शन है उसके ज़रिए आप लिस्ट की करंट एलिमेंट साइज़ देखना चाह रहे हैं कि उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इट विल रिटर्न द साइज़। अगर आप उसको काउंट को बैक करना चाह रहे हैं तो एक एलिमेंट पीछे जाना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप करंट को डिक्रीमेंट करेंगे। अगर आप स्टार्ट पे जाना चाह रहे हैं तो करंट को आप 1 पे ले आएंगे, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट पे ले आएंगे। और अगर आपने उसको एंड पे लेके जाना है तो इट मीन्स
करंट इक्वल्स टू साइज। माइंडेड कि हम इसको फिलहाल सी लैंग्वेज के हवाले से नहीं देख रहे। आप कहेंगे यहाँ पे तो 0 होना चाहिए था, यहाँ पे साइज -1 आना चाहिए था। अब भी हम लॉजिकल लेवल पर देख रहे हैं कि स्टार्ट मीन्स यू हैव टू पुट द पॉइंटर एट द करंट लोकेशन विच मीन्स नंबर 1 पे आपने लेके आना, अगर एंड पे मीन्स कि आपने जो मैक्सिमम नंबर है जिस वक्त जो करंटली जो साइज है द लिस्ट का जो कितने मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें एंड वाले पे लेके जाना है। तो अगर हम एरे लिस्ट का थोड़ा सा एनालिसिस भी करना चाहें तो एडिशन हमने करनी है, तो वी वांट टू मूव एवरी एलिमेंट टू द राइट ऑफ द करंट टू मेक स्पेस फॉर द न्यू एलिमेंट ऐड करना है, इंसर्ट करना है। तो उसमें वर्स्ट केस क्या हो सकता है? वर्स्ट केस इज व्हेन वी इंसर्ट एट द बिगिनिंग, क्योंकि जब हम बिगिनिंग पे करेंगे तो हमें तमाम एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को एक पोजीशन आगे करना पड़ेगा, तमाम ट्रावर्सल भी करनी पड़ेंगे, उनको आगे भी करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू मूव एवरी एलिमेंट राइट वन प्लेस। और उसका जो बेस्ट केस क्या हो सकता है कि जो आपकी करंट लोकेशन अगर ऑलरेडी टेल को एंड पे पॉइंट कर रही है तो उसके बाद आपने करना है। एवरेज केस क्या हो सकता है कि ऑन एवरेज वी मे हैव टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, या जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स अगर 6 हैं तो एवरेज हमें 3 ही मूव करने पड़ेंगे। रिमूव का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम कर देखें तो रिमूव में वर्स्ट केस क्या है कि यू रिमूव एट द बिगिनिंग एंड देन आफ्टर, क्योंकि रिमूवल में तमाम को शिफ्ट करके आगे भी लेके आना है, तो और उसमें एवरेज केस जो है वो यू एक्सपेक्ट टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट, और उसका जो गुड केस है कि सबसे आखिरी एलिमेंट को ही आपने डिलीट करना है। इसमें फाइंड करना है आपने वर्स्ट केस, इसमें ये है कि यू मे हैव टू सर्च द एंटायर एरे और आपको मिले ही ना, ये आखिरी एलिमेंट हो। एवरेज केस हो सकता है कि आपको सर्च करना पड़े हाफ ऑफ द एरे और आपको वो नंबर मिल जाए। बेस्ट केस है कि पहले अटैम्प्ट पर ही आपको मिल जाए। और इसी तरह जो अदर ऑपरेशंस हैं वो 1 स्टेप हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमने बेसिकली थोड़ा सा ये देखा कि व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स, हमें डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, व्हाट वी डू वी नीड। डेटा स्ट्रक्चर की फ़िलॉसफी को हमने देखा, फिर हमने डेटा स्ट्रक्चर की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, डिफरेंट हवाले से की। फिर हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशंस जो थे वो 4 बेसिक ऑपरेशंस, ट्रैवर्स का देखा, सर्च का देखा, ऐड करने का, डिलीट करने का। इसके अलावा हमने जो है वो कॉन्काटिनेशन भी देखा। पर हमने कहा 2 स्पेशल होते हैं, मर्जिंग का और सॉर्टिंग का, ये किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर लगाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एरेस के हवाले से, लीनियर एरेस के हवाले से बात की। और आज हमने जो है वो पहला जो लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो है लिस्ट, उसकी हमने बात की कि व्हाट इज़ लिस्ट और उस पर अलाउबल ऑपरेशंस क्या हैं। और 1-2 ऑपरेशंस के जो हैं वो हमने एल्गोरिथम भी देखे, छोटा सा प्रोग्राम भी देखा, कुछ के बारे में भी हमने ब्रीफली बात की है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम उनके बारे में एल्गोरिथम भी आएंगे और सैम्पल कोड भी देखेंगे कि हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन सी और C++। और उसके अलावा सम ऑपरेशंस हमने देखे, जैसे ऐड का है, रिमूव, गेट, फाइंड, कि लिस्ट पर क्या ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो आई सिंसियरली होप कि आज के जो डिस्कशंस हैं वो आपको काफ़ी क्लियर होंगी एंड यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वक्तन जो है अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा लैब आवर्स को, उसके अलावा अपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। यू कैन फाइंड लॉट ऑफ बुक्स ऑन द इंटरनेट, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जब तक आप प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं करेंगे ये आपको हॉन्ट करेगी, इसलिए आप डिफरेंट जगह से एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ आप करने के लिए एक्सरसाइजेज भी दूंगा। लैब वर्क आपका ठीक ठाक चल रहा होगा और उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैं क्लास में इन लेक्चर्स के थ्रू जो आपको बता रहा हूँ तो आप उनको फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और वह लैब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।